बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करस्पॉन्डिंग स्टेट इक्वेशन है। हम कैसे वंडर वाल इक्वेशन को यूज़ करके हम कैसे करस्पॉन्डिंग स्टेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो करस्पॉन्डिंग स्टेट equation. First of all, I am writing the one equation which is p plus a n square by v square into b minus n. b is equal to n r t. This becomes equation number 1. Now for one molar case, for n is equal to 1, this equation number 1 can be written as p plus a by v square into b minus b is equal to r t. This become. Now in case of corresponding state equation, we write pressure is a fraction of critical pressure. This becomes equation number 3. Volume is a fraction of critical volume, and temperature is a fraction of critical temperature. This becomes equation number 5. Now, what is pi, what is psi, and what is theta? So this is pi is reduced pressure, and psi is reduced volume, and the theta is reduced temperature. Now for finding the value of P, V and T, we will cross this with this with this to find the value of P, V and T. So P is equal to pi PC. This becomes equation number 6, and V is equal to psi VC. This becomes equation number 7, and T is equal to theta TC. This becomes equation number 8. Now put the value of equation number 6, 7, 8 in equation number 2. ऊपर नजर नहीं आता तो put value of equation 6, 7, 8 in equation number 2. Now P की जगह इक्वेशन नंबर 2 में पाई PC आ जाता है प्लस A बाय V स्क्वायर की जगह V की जगह हमारे साथ साइन VC होल स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ इस V की जगह हमारे साथ ये वैल्यू आ जाती है जो कि VC है और माइनस B है, और जो R अपनी जगह आ जाता है इक्वेशन 2 वाला, और जो ये T है T की जगह हम ये इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू पुट कर दें जो कि थीटा TC है, थीटा
TC है. Now as we know that the PC is equal to, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमने क्रिटिकल प्रेशर फाइंड किया था, क्रिटिकल वॉल्यूम भी फाइंड किया था और क्रिटिकल टेम्परेचर भी फाइंड किया था. सो वी विल, मैं अगर डायरेक्टली लिख लूँ तो यहाँ से तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ PC की वैल्यू क्या है. PC is equal to A by 27B square और TC is equal to 8A divided by 27RB और VC हमारे साथ A3. तो मैं इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको 9 लेता हूँ, यहाँ ये 9 हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 10. This become 11 and this become equation number 12. Now by putting equation number 10, 11, 12 and equation number 9, put equation number 10, 11, 12 and equation number 9. So पाई अपनी जगह और PC की जगह हम A डिवाइडेड बाई 27 B स्क्वायर लेते हैं प्लस A डिवाइडेड बाई साई स्क्वायर. ये स्क्वायर है, यहाँ ये स्क्वायर है तो VC की जगह मैं 3B लेता हूँ और चूंकि VC पर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर लिया है, स्क्वायर लिया और साई अपनी जगह VC की जगह 3B माइनस ये B हो, ये B अपनी जगह और R थीटा TC की जगह 8A divided by 27RB. Now this first of all I will simplify this equation. Pi A divided by 27 B square plus A divided by A square 9B square into sin 3 डायरेक्टली 3 आगे लिया है क्योंकि B कॉमन है दोनों में तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ दिया जाएगा और ये R थीटा 8A divided by 27 RB. So R यहाँ से कैंसिल हो जाता है. So this become equation pi A divided by 27B square into plus A divided by psi square 9B square divided into 3 psi minus 1 into B is equal to A theta divided by 27B. Now this become equation number 13. ये equation number 13 हो गया. अब हम इसको equation number 13 को A divided by 27B square पर डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड equation number 13 by A divided by 27B square. Now this equation will become pi A divided by 27B square. जब मैं इस इक्वेशन को A डिवाइडेड बाई 27B स्क्वायर पर डिवाइड कर लेता हूँ तो मैं ये टर्म जो है ना ये नीचे लूँगा तो जब मैं इस टर्म को ऊपर ले लूँगा तो ये
27 डायरेक्टली 27b² डिवाइडेड बाई a बन जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल रूल से प्लस a, ये टर्म अपनी जगह a डिवाइडेड बाई साई स्क्वायर 9b² क्रॉस इस ये टर्म, चूंकि मैंने डिवाइड किया इस टर्म पे डिवाइड की, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 27b² डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, 27b² डिवाइडेड बाई a। इसी तरह ये भी है, तो ये इस तरह हो जाएगा, और 3 sin -1 हो जाएगा, b अपनी जगह आ जाएगा, और 8a थीटा डिवाइडेड बाई 27b क्रॉस 27b² divided by a. Now we will cancel some part. ये 27b² के साथ कैंसिल हो जाता है, ये a के साथ कैंसिल हो जाता है, और ये b² यहाँ b² के साथ कैंसिल हो जाता है, और a के साथ कैंसिल हो जाता है, 9 और 9 ये 3 हो जाएगा, इस यहाँ जो टर्म में हाँ ये 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b² के साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा ये इक्वेशन बन जाएगा, ये वाला पोर्शन में यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जो टर्म रह जाते हैं सिर्फ पाई है, और पाई रह जाता है, इस पार्ट से पाई रह जाता है, और इस पार्ट से 3/साई² रह जाता है, 3/साई² रह जाता है, और यहाँ से 3 sin -1 b अपनी जगह, और यहाँ से 8 थीटा b रह जाता है, क्योंकि यहाँ b और b के स्क्वायर, ये b इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 8 थीटा और b रह जाता है, इक्वेशन की दूसरी साइड 8 थीटा b रह जाता है, तो ये b के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे साथ करस्पॉन्डिंग स्टेट इक्वेशन बन जाता है, पाई प्लस 3/साई² इंटू 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 8 थीटा। ये हमारे साथ इक्वेशन आ गया नंबर 14, एंड दिस इज इक्वेशन this is corresponding state equation. This is corresponding state equation. So equation number 14 के साथ हमारा लेक्चर corresponding state equation के डेरिवेशन पर खत्म हो जाता है। थैंक यू।